Okay, good morning, everyone. Good morning. If you can see me, hi. If you can hear my voice, say hi. Good morning, everyone. Okay, I can see some children are waving hand. Okay, so I think you have learned last class or last year also. We have learned some of this, right? We were doing this coding class last year also, so it is going to be a continuation from there. But of course, we are meeting after a long break, so I'll just quickly revise in 10 minutes, okay? And then we begin with the new topic. So, are we ready, everyone? Excited? Give me a good smile on your face, everyone. Yes. Okay. So I'm sharing a screen and we'll quickly revise that which this thing we are learning and what all things we have learned it so far. So I'm sharing my screen, everyone. So till by the time I'm sharing the screen, you all can prepare yourself like what we have learned last year, what all topics you have learned. So all that thing you just revise everything in your mind. Okay, everyone. Share a screen. Okay, my screen is visible, everyone. Okay, so if you remember which application we have used last year, even remember from this desktop, can you see? So we have used this Scratch 3 last year. So same application, we are using it again this year. And on that, you can, make so many different complex projects. So last year we could do a basic things on it. So we are going to do many more advanced things on it. Okay. So just quickly revising, this is called as a stage. These characters, what we are selecting on the stage are called as a sprite. Then the background which you select called as a backdrop, that you can select it from this side. Then all the sprites, whatever you select, will be listed over here. We'll have multiple sprite. Not necessary you can select one or two only. You can select n number of sprite, whatever you want in your project. Then you can change the sprite. You can download also from internet. We'll see that how to do it. Then we have learned this coding blocks. Some of them we have learned it. Some of them we are going to learn it this year. So you can see we have motion palette. Motion palette means everything related to the movement of the sprite. Then we'll have a looks. See, the name itself says that what it is related to. So if you want to change, size of the sprite, so where will you get? You will get that particular block in the looks palette. Okay, so you have to work little smart. You don't need to go everywhere and check where is it related to the size. Then we have a sound palette. You can add a music to your file. Then you have an event block. Event block means we have seen last year that when green flag is clicked, you want something to happen, right? Then some of the game or some of the project starts with the space button in your keyboard. Do you all understand what I'm saying? All the game what you play in your computer or maybe tab or maybe mobile phone, they have some button. They say right in the beginning कि आपको ये button press करना है to start the game. Yes, everyone. Same way here also in the project you can write a program that if you press the either space button or maybe up arrow key or maybe down arrow key, anything, it is up to your your requirement. It's up to your choice what you want to do. Then you have the control palette. If you want to control some of the blocks for maybe say 5 times or maybe for some number of seconds or maybe some number of काय कंडीशंस यू कैन से कि जब तक ये चालू है टाइमर चालू है तब तक ये ऑन होना चाहिए और मे बी जब तक पावर है तब तक वो ऑन होना चाहिए सो इट इज बेस्ड ऑन सम कंडीशन यू कैन डिसाइड कंट्रोल मीन्स कब तक वो प्रोग्राम चलेगा ओके देन यू हैव द सेंसिंग पैलेट some of them we have used it last year. Sensing palette means you in the project suppose you have selected 3-4 different sprites or maybe you have a different colors in the background, so are using this as a logic in your coding. When one of the sprite is touching other sprite, something should happen. Okay, same way if I give you example, if you have played Subway Surf game, have you played everyone Subway Surf game? You might have played Subway Surf or maybe the Temple Run was there. It was very famous when they started this game. So there, the character is just continuously running on the path. बीच में कुछ भी अगर आता है, if your character is hitting that thing, then अगर touch हुआ या फिर कुछ power आया, तो all this thing is possible how? हम लोग coding करते हैं वहाँ पे कि अगर ये character ने power को touch किया, तो then character will move faster, or maybe character will be protected with anything else. Like that. Okay, then you have the operator palettes that we are going to learn now. Maybe we have not used it much last year. Then other things we'll learn it. These are the advanced blocks. We'll learn it later on. Okay, slowly. Then अगर आपको costume change करना है,
appearance change करना है किसी sprite का, then you have this 3 tab on the top. Can you see my mouse pointer where it is? We have 3 tabs on the top. So ये first वाला tab है वो coding का है, then second वाला tab जो है वो costume का है. तो अभी यहाँ पे cat sprite selected है, एक ही costume sprite है हमारे पास, उसके 2 costume है. If you see what is the difference between both the costume, can you see everyone? पहले वाले में पैर ऐसे है, legs are like this. In the second one, the legs are little like this. So if you change continuously, what kind of effect it is giving you, everyone? अगर आप इसको continuously change करोगे costume को program में, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो cat walk कर रहा है, वो चल रहा है. Yes? तो same way यहाँ पे दूसरे sprite में सब में अलग अलग costumes है. Some sprite will have the dancing costume. We have used it last year, if you remember. Some sprite had a dancing costume. So वहाँ पे 7-8 costumes थे, हम लोगों ने उसको change किया program में. Then if you change it continuously, तो it was looking like that the sprite was dancing. Yes, everyone? Then we have the sound palette. You can select the sound of your choice. Right now, if you hear this, this is a by default sprite के अंदर meow sound है. So let's see this. Could you hear this? Yes. So you can change the sound also. See, हर एक game में, हर एक animation आप जो भी बनाते हो, पीछे background में sound होता है, right? So you can change the sound as per your requirement. So are we clear with this basic thing? Last year we have done some of this. So yes, of course, अगर हम लोग वापस use करेंगे तो आपको और थोड़ा better understanding होगा. Again, I'm requesting you. Last year भी बोला था, some schools are not able to do it in the lab. Computer lab में नहीं कर पा रहे हो. अगर कर पा रहे हो टीचर्स तो इट इज वेरी गुड, तो बच्चे मेरे साथ करेंगे. अगर नहीं कर पा रहे हो बच्चे तो प्लीज यू कैन जस्ट टेक अ नोट इन योर बुक इफ यू वांट, और मे बी यू कैन ट्राई टू रिमेम्बर एंड घर पे जाकर यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑन द योर कंप्यूटर और मे बी ऑन योर टैब. मोबाइल में नहीं चलेगा प्लीज. अगेन आई एम रिपीटिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप और टैब यू कैन ट्राई. ओके, सो इफ यू वांट टू डू इट ऑनलाइन, व्हाट यू कैन डू, आई जस्ट क्विकली ऑनलाइन. अगर आपको करना है तो आपको गूगल क्रोम पे जाना है, डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हो और मे बी आप डाउनलोड भी कर सकते हो. सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? स्क्रैच है. सो यू हैव टू डू इट ओवर हियर, scratch.mit.edu. ये वेबसाइट है. अगर आपके पास नोटबुक या कुछ भी है तो यू कैन नोट इट डाउन. scratch.mit.edu. ये वेबसाइट पे जाना है आपको. यहाँ पे आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है और आप डायरेक्टली यहाँ पे भी प्रोजेक्ट बना सकते हो. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आएंगी. ओके एवरीवन, क्लियर? एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज यू कैन शो मी थम्स अप एंड गुड स्माइल ऑन योर फेस. ओके एवरीवन, आपको मे बी थियोरी थोड़ा इतना कंटिन्यूसली सुन के इतना थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा साथ में. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली करना है यहाँ पे तो आप स्टार्ट क्रिएटिंग करके, if you click on this directly, जैसे मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर ओपन है वैसे सेम सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा. तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो और ये प्रोजेक्ट को आपको सिस्टम में सेव भी कर सकते हो. क्लियर एवरीबडी? यू कैन डू इट हियर. कैन यू सी इट इज लोडिंग? इट टेक्स टाइम. ओके, तो अगर आप घर पे भी करोगे, इफ इट इज टेकिंग टाइम टू ओपन, लेट इट ओपन. फाइन, क्लियर? कैन यू सी इट्स द सेम सॉफ्टवेयर बट इट इज ऑनलाइन. क्लियर एवरीबडी? सो कैन गो होम एंड प्रैक्टिस इट. Fine, you can see the same palettes, everything is given, same costume palette, sound palette, everything is same, nothing is different. So you can do it, practice over here directly online. And how to save it, I'll show you again after at the end of the class. Clear everybody? Okay, so now let's start. Okay, so now today what are we going to do? First I will show you that and then we begin with that. Now I'm showing you what is the final output. What are we going to do today? Yeah. Okay. कुछ तो syllabus में आपने पढ़ा ही होगा. Do you know what is kg? See, I've written kg over here. That means it's kilogram. Kilogram आपको सबको पता है. What is kilogram? Okay. ग्राम आपको पता है. यूनिट है, ये सब मेजरमेंट के यूनिट है. आपकी हाइट आप कैसे मेजर करते हो? आप बोलते हो ना मेरी हाइट 4 फीट है, 5 फीट है, और मे बी आप सेंटीमीटर में भी बोलते रहोगे मेरी हाइट 140 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है. इट कैन बी एनीथिंग. यूनिट कुछ भी हो सकता है. अगर आपके घर पे दूध आता है तो दूध आप कैसे मेजर करते हो?
किलो में बोलते हो क्या आप 1 kg मिल्क लेके आना? No, it's not like that. You just say ml, how many liter or milliliter you want. Okay, if it is half liter, 1 liter, 2 liter, liquid liter में measure करते हैं. हाइट वगैरह हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, फीट, डिफरेंट यूनिट्स रहते हैं. नाउ ये सब यूनिट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. ओके, अब ये किलोग्राम एंड ग्राम के बीच में क्या यूनिट है, में डिफरेंस है. फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है. ओके, तो छोटे यूनिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नंबर के साथ, तब जाके वो बड़ा यूनिट बनेगा. ओके, नो सॉरी, डिवाइड करेंगे तब जाके बड़ा यूनिट बनेगा. ओके, तो अगर हम लोग 1000 ग्राम से 1000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. Just note it down if you want, or maybe you remember it. Okay, 1000 gram is equals to 1 kg. Okay, kg is a bigger unit. तो अगर हम लोग बोलते हैं मेरे पास 1000 ग्राम एप्पल है, तो दैट इज इक्वल टू 1 kg एप्पल. ओके, 1 किलो एप्पल है. क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे किलोग्राम टू ग्राम और ग्राम टू किलोग्राम. सो ये बनाने का पर्पस ही वही है कि हम लोग जस्ट इजीली कन्वर्ट कर पाए. बट अगर वो 1000 है तो इजी है कन्वर्ट करना 1 kg. अगर वो 2000 है तो इजी है कन्वर्ट करना 2 kg. बट व्हाट इफ somebody says I have 1927 gram, then you will get confused, right, that how many kg it is. So we have habit, we are in technology world, so we have habit of directly converting, we directly convert everything online. अगर कुछ भी चेक करना है, अगर पता नहीं है क्या यूनिट में आएगा, तो we just go online and we just do it, right? We just change the unit whatever you want to check. अगर आपको पता नहीं है, आपको इतना पता है मेरी हाइट 4 feet है, but if somebody says your height is in centimeter, you don't know, so what will you do? You'll just go to the online, you'll just type it 4 feet is equals to how many centimeter. आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. सेम चीज हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं. ये जस्ट वन लेआउट है. आपको घर पे जाके कुछ और भी ऐड करना है, डेफिनेटली इसमें आप कर सकते हो. ओके, बट आपको यूनिट का कन्वर्जन पता होना चाहिए. दैट्स इट. क्लियर एवरीबडी? यू शुड नो द कन्वर्जन बिटवीन दोज यूनिट. सो हियर एज आई सेड, like 1000 gram is equals to 1 kg, so then you can write the program accordingly on the back side. Now this inches and centimeter, inches and centimeter also has a relation in between. 2.54 centimeter is equals to 1 inch. Okay, then even and odd. Even and odd kya hai? If you know this even number and odd number, you must have learned in the mathematics. Even numbers are divisible by 2, and after dividing 2 the remainder should be equal to 0. डिवाइड आपको पता है सबको. डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर नीचे जो नंबर बचता है वो 0 होना चाहिए. उसका मतलब होता है कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब वो इवन नंबर है. एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, all these are even numbers. ऑड नंबर्स क्या होता है? जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11. These are the odd numbers. काफी लोगों को इजीली क्लिक नहीं होता है. अगर आपको रैंडमली टीचर भी क्लास में पूछेगी, आप भूल जाओगे. तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली मेक अ कैलकुलेटर, यू कैन डू अ स्मार्ट वर्क, राइट, बिकॉज यू नो द टेक्नोलॉजी. सो हम लोग इसको बनाने वाले हैं. ओके, प्रोग्राम करके बनाना है हमको. तो देखो कैसे वर्क करता है. अभी मैं क्लिक कर रही हूँ. अगर आई डोंट नो, आई डोंट नो 57 कौन सा नंबर है, तो मैं यहाँ पे, आपको नीचे दिख रहा है एक टैब आ रहा है, तो 57 यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ मैं. एंटर की प्रेस करना है, वो बता रहा है ऑड नंबर है. ठीक है, सपोज आपको कोई नंबर है 86, नहीं पता है इवन नंबर है ऑड नंबर है. टाइप किया, इट सेज इवन नंबर बिकॉज 86 इज डिवाइडेड बाय 2. इट्स पॉसिबल. नाउ इंचेस टू सेंटीमीटर, अगर इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनीथिंग, so let's see 1 inch कितना सेंटीमीटर होता है. तो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रही हूँ. You can see 2.54 सेंटीमीटर. सेम वे इफ यू वांट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू इंचेस, तो सपोज मुझे किसी ने बोला मेरा हाइट है 140 सेंटीमीटर, तो इंचेस में इट इज 55.11 इंचेस. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इट. अभी ये पूरा प्रोग्राम किया है हम लोगों ने बैकएंड में. क्लियर एवरीवन? Let's see this also, gram to kg. If somebody says I have 1150 gram of apple, that means it is 1.15 kg apple. Clear everybody? So let's make this.
we'll see slowly. If you have a notebook, you can note it down. If you do not have, just try to listen carefully, you'll understand much better. Same program ही है, सिर्फ सब में अलग अलग यूनिट यूज करना है. क्लियर? Now, do we need this cat sprite? No, we do not need it, so we'll delete it like this. Click on that sprite, यहाँ पे delete बटन आएगा, delete कर दो उसको. अभी हमको बटन sprite चाहिए. You can make it however you want. तो अभी देखो कैसे करना है. हम लोगों ने लास्ट ईयर सीखा है, but again I'm revising it slowly so that you can either note it down or maybe you can remember it. Okay? Now sprite बनाना है तो we will not go here in the backdrop. See, यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज द स्प्राइट. सो आपको स्प्राइट में जाना है. अभी आपको पहले हमारे पास बटन ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल नॉट वेस्ट टाइम आइदर इन ड्रॉइंग और मे बी यू कैन डायरेक्टली टेक अ बटन. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे चूज स्प्राइट में जाएंगे. तो वहां पे जाना है आपको चूज स्प्राइट. अभी यहाँ पे जाके हम लोग डायरेक्टली बटन सिलेक्ट करेंगे. वो लोड हो रहा है. यहाँ पे जाना है आपको, अल्फाबेटिकली सब स्प्राइट मिल जाएंगे. ओके, सो यू जस्ट गो हियर, slowly scroll down. It's loading, 1 minute. Yeah, so यहाँ पे कैन यू सी अल्फाबेटिकली ही है, तो बटन यहाँ पे ही है हमारे पास, बी वाला ब्लॉक. तो अलग अलग टाइप के बटन है, आपको जो भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो. पहले हम लोग वो 4 बटन बना लेंगे, ग्राम टू किलोग्राम, किलोग्राम टू ग्राम वाला. सो ये वाला बटन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज वो थोड़ा लंबा मैसेज है. सो आई विल प्रेफर हॉरिजॉन्टल बटन. ओके, लंबा बटन यू हैव टू सिलेक्ट बिकॉज द मैसेज विच यू हैव टू टाइप इनसाइड इट्स लिटिल बिगर. ये बटन, एक बटन लेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे रख देंगे. पहले प्लेस कर दो जहां पे भी रखना है. फाइन. अभी इसके डुप्लीकेट बना लेंगे. वी नीड 4 बटन, राइट, लाइक दिस. सो डुप्लीकेट कैसे बनाना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है माउस से, देन डुप्लीकेट करो. वी नीड 2 more buttons. Right click, duplicate. 1 more time, right click and duplicate. So just place all the buttons in order. However you want, you can place it. Okay, it is up to you. Now, अभी फर्स्ट बटन कहाँ पे है, पहले ये फर्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे. कैन यू सी व्हेन आई क्लिक ऑन दैट बटन, द बटन इज गेटिंग हाईलाइटेड ओवर हियर. वो हाईलाइट हो रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे. मुझे पता है ये वाला मेरा फर्स्ट बटन है. नाउ व्हाट मैसेज आई वांट टू टाइप इन दैट फर्स्ट बटन, आई विल से किलोग्राम टू ग्राम, व्हाटएवर यू वांट यू कैन टाइप इट. ओके, सो टाइप करने के लिए पहले यहाँ पे हम लोग कोडिंग में थे, तो हम लोग कॉस्ट्यूम में जाएंगे. यहाँ पे इफ यू सी यू हैव द टेक्स्ट वाला ऑप्शन. सो यहाँ पे जाके हमको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है पहले. फिर यहाँ पे जाके कलर चेंज करेंगे, आपको कौन सा कलर का टेक्स्ट चाहिए. अभी बैकग्राउंड ब्लू कलर है, तो आप ऐसा कोई कलर सिलेक्ट करो कि जो आपको प्रॉपरली क्लियरली विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए. सो कैन सिलेक्ट द डार्कर रेड शेड और समथिंग लाइक दैट, और मे बी ब्लैक कलर ऑल्सो फाइन यू वांट. देन क्लिक ओवर हियर. पहले क्या किया मैंने, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया, फिर मैंने कलर चेंज किया, फिर यहाँ पे बटन पे आके मैंने क्लिक किया. अगर थोड़ा ऊपर नीचे क्लिक होता है तो इट इज ओके. आई विल शो यू हाउ टू एडजस्ट द टेक्स्ट. ओके, अभी बहुत लंबा मैसेज नहीं टाइप करेंगे हम लोग, पूरा स्पेलिंग नहीं टाइप करेंगे किलोग्राम ऐसे करके, सिर्फ केजी टाइप करेंगे, केजी टू ग्राम. ओके, नाउ सी यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने. उसके बाद एक बार साइड में आउटसाइड 1 टाइम क्लिक करो, फिर इसको यहाँ पे ड्रैग करके हम लोग प्लेस कर सकते हैं कहीं पे भी आपको चाहिए वैसे सेंटर में. कैन यू सी माय टेक्स्ट आर फिटिंग प्रॉपर्ली इनसाइड द बटन. अगर आपके टेक्स्ट थोड़े बड़े हैं, छोटे करने हैं या फिर बड़े करने हैं, तो यू कैन ड्रैग इट लाइक दिस और ड्रैग इट इनसाइड हाउएवर यू वांट. समझा सबको? टेक्स्ट ऐसे सिलेक्ट करके प्रॉपर्ली फिट कर देंगे. तो ये हो गया हमारा किलोग्राम टू ग्राम वाला बटन. अभी दूसरा बटन जो है वो चेक करते हैं कहाँ पर है हमारा ये वाला दूसरा बटन. ये वाला जो बटन है इसके नीचे हम लोग, ये वाला बटन है मेरा. ओके, तो इसके अंदर क्या लिखना है, ग्राम टू किलोग्राम. सो हम लोग वापस टेक्स्ट और ये कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देंगे. अभी लिखेंगे ग्राम टू किलोग्राम. वापस क्लिक करो बाहर एक बार, इसको ड्रैग करके सेंटर में सेट करो. ओके, इफ यू वांट
reduce the size of the text, you can definitely do it. Can you see everyone over here like this? समझ आए सबको? पक्का? ओके उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंचेस टू सेंटीमीटर. तो अभी ये वाले बटन पे जाएंगे, यहाँ पे वापस सिलेक्ट लिखेंगे हम लोग इंच टू सेंटीमीटर. अभी थोड़ा साइड में है तो क्या करना है, देखो क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करके यू कैन प्लेस इट वेर एवर यू वॉन्ट. फाइन. नाउ द नेक्स्ट बटन वी विल बी राइटिंग सेंटीमीटर टू इंचेस. इसको भी सेंटर में प्लेस कर देंगे टेक्स्ट को. ठीक है क्या एवरीवन? लाइक दिस यू मेक द 4 बटन्स. अभी लास्ट वाला बटन जो है सेंटर में ऑड इवन का, यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो, और मे बी हम लोगों ने अभी जो किया है यू कैन सिलेक्ट द बटन और उसके अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो. बट हियर आई विल शो यू टू ड्रॉ इट. ओके सो हाउ टू ड्रॉ इट फ्रॉम द बिगिनिंग. गो हियर ऑन द स्प्राइट पार्ट. सेकेंड ऑप्शन इज पेंट ऑप्शन. That means you can paint it directly from the beginning. Okay, so paint करने के लिए हम लोग rectangle, square, आपको जो भी shape का चाहिए वो बटन आप बना सकते हो. I want to write it rectangle shape because even and odd थोड़ा लंबा मैसेज है, तो हम लोग rectangle tool लेंगे. आपको बॉर्डर कौन सा कलर का देना है, अंदर कौन सा कलर फिल करना है, इफ यू रीड ओवर हियर आपको सब समझेगा. फिल मतलब अंदर कौन सा कलर फिल होगा. सी अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी यहाँ पे तो क्या होगा, वो अंदर कलर फिल करके आ रहा है. तो डोंट वरी, हम लोग निकाल भी सकते हैं अंदर की फिलिंग को. यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैन यू सी द क्रॉस लाइन, दैट मीन्स नो कलर फिलिंग. समझा सबको? अभी अगर आपको आउटलाइन देना है तो अभी यहाँ पे आउटलाइन में जाना है. आपको कौन सा कलर देना है आउटलाइन में, यू कैन चूज दैट कलर ऑफ योर चॉइस. अभी आउटलाइन कितना थिक चाहिए आपको. अभी कैन यू सी द बटन इज कमिंग ऑन द स्क्रीन. अभी दिस इज माय आउटलाइन. आपको कितना थिक आउटलाइन चाहिए, यू कैन डिसाइड इट. सी लाइक दिस बटन, देन वी कैन चेंज द पोजीशन. अगर आपको अंदर भी थोड़ा लाइट शेड कलर फिल करना है तो यू कैन डू इट लाइक दिस. कैन सी इफ यू वांट टू मेक बटन लाइक दिस, यू कैन डू योर क्रिएटिविटी हाउएवर यू वांट. अभी बटन हमारा ये सब बन के हो गया. अभी अंदर हमको मैसेज भी टाइप करना है तो क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेना है आपको. कौन सा कलर का टेक्स्ट लेना है, यू कैन सिलेक्ट दैट कलर. से वी आर यूजिंग द ब्लैक कलर ओनली. देन वी विल राइट डाउन इवन एंड ऑड. तो आपको इवन ऑड जो भी मैसेज है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा. ओके सी वी विल मेक द टेक्स्ट लिटिल स्मॉलर. या सी so this is how you can design your own button also. Are we clear till here, designing part and the writing text part, everyone? Okay, fine. Now how to select the background. Okay, so for the background what we will do, see background already हमारे पास plain है. If you want to keep it plain, it's your choice. अगर आपको बैकग्राउंड में कोई कलर देना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके डायरेक्टली सी बटन्स है, टेक्स्ट है, तो आप कलरफुल बैकग्राउंड तो नहीं सिलेक्ट कर सकते. ये सब टेक्स्ट वाले डिजाइन वाले बैकड्रॉप तो सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो आई वुड सजेस्ट आइदर कीप इट प्लेन बैकग्राउंड और मे बी यू कैन जस्ट गिव अ प्लेन कलर, लाइट प्लेन कलर ऑन द बैकग्राउंड. सो बैकड्रॉप में जाना है, यू कैन जस्ट से पेंट योर बैकग्राउंड. हमको कुछ भी पेंट करना नहीं है, सिर्फ चाहिए तो यू कैन जस्ट फिल द कलर. एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो और फिल कर दो कलर. तो अभी क्या करेंगे, देखो रेक्टेंगल टूल लेंगे, नो आउटलाइन. पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे. एक कैन जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल. और अगर आपको बैकग्राउंड में जो भी कलर चाहिए कि आपको अभी, कैन जस्ट सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस. maybe a light shade. Okay, of course, go for the light shade. You can just try, see this, or maybe any other color of your choice. So this is how you can just draw a small a big rectangle on the background and you can just fill the color. That's it. It's very simple. Clear till here in the designing part? आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, प्लीज बिगिनिंग में यू जस्ट हैव टू सेट द कलर एंड लेआउट एंड एवरीथिंग. उसके बाद गो फॉर द प्रोग्रामिंग. आर वी क्लियर टिल हियर? Okay, now what we will do from here we have to write a program. अभी मुझे प्रोग्राम क्या करना है, एक एक बटन का प्रोग्राम करना है.
तो सबसे पहले हम लोग ऑड एंड इवन का प्रोग्राम करेंगे. ओके, ऑड एंड इवन बटन का प्रोग्राम करेंगे. ऑड एंड इवन में क्या होता है, हम लोग को डिवाइड करना है बाई 2 एंड अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स इवन नंबर है. ये लॉजिक है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द लॉजिक. whatever number user enters, अगर सपोज मुझे नंबर चेक करना है 37 डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 37 शुड बी डिवाइडेड बाय 2. अगर हम लोग 37 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा, यस 1 रिमाइंडर बचेगा, तो वो इवन नंबर नहीं है, दैट मीन्स वो ऑड नंबर है. तो हम लोग सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ओके, तो अभी ये प्रोग्राम कब होना चाहिए, जब कोई भी बटन, हम जो भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम होना चाहिए. तो उसके लिए इवेंट ब्लॉक क्या आएगा, when this sprite clicked, whenever user is clicking on this sprite, particular sprite, वो एक particular sprite का ही प्रोग्राम है. यहाँ पे हम लोग ग्रीन फ्लैग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ग्रीन फ्लैग यूज करेंगे तो यहाँ पे 5 बटन है, तो सब बटन का अलग अलग प्रोग्राम है ना, सबका साथ में प्रोग्राम नहीं चलेगा. ओके, तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, when this sprite is click वाला बटन यूज करेंगे फॉर द इवेंट पैलेट. अभी इसके नीचे मैंने क्या लॉजिक बोला, आपको डिवाइड करना है 2 से एंड रिमाइंडर चेक करना है. तो उसके लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, बट उसके पहले आपको यूजर को पूछना भी पड़ेगा, राइट, कि आपको कौन सा नंबर चेक करना है. व्हेन आई वाज चेकिंग, मुझे यहाँ पे एक नीचे बॉक्स आ रहा था, तो वो कैसे आ रहा था, यहाँ पे सेंसिंग पैलेट में हमारे पास ऑप्शन है आस्क क्वेश्चन. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन है, वो पूछेंगे. अभी क्या क्वेश्चन पूछना है हमको, यहाँ पे यू हैव टू टाइप इट, एंटर नंबर. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग अ शॉर्ट क्वेश्चन, जस्ट एंटर अ नंबर. हमको जो भी नंबर चेक करना है, वी जस्ट हैव टू आस्क यूजर टू एंटर दैट नंबर, दैट्स इट. एंटर नंबर एंड वेट मतलब क्या, जब तक वो यूजर वो नंबर एंटर नहीं करेगा उसके नीचे, तब तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा. क्लियर, फाइन. नाउ लेट्स सी व्हाट टू डू नेक्स्ट. अभी उसके बाद क्या करना है, हमको चेक करना है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है कि नहीं बचता है. उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर ब्लॉक में जो भी मैथमेटिकल डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपको जो भी करना है, कंपेयर करना है, कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है, वो सब चीजें आपको ऑपरेटर ब्लॉक में मिल जाएगा. आर वी क्लियर? Okay, now in the operator block, if you scroll down little bit, you will get the block called as a mod. This mod means modulus. mod को क्या बोलते हैं, modulus बोलते हैं. क्या मिलेगा हमको इससे, रिमाइंडर मिलेगा डायरेक्टली. what you will get it, remainder. so which number divided by what number, so that you have to write down over here. अभी यूजर जो भी नंबर यहाँ पे एंटर करेगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा वो आंसर. यहाँ पे कैन यू सी आंसर करके कुछ है, मैंने आपको फिलहाल अभी ऑन किया है. अभी यहाँ पे कैन यू सी ऑन द स्क्रीन देयर इज नथिंग इनसाइड इट, बिकॉज वी हैव नॉट टेकन एनी नंबर फ्रॉम द यूजर राइट टिल नाउ. सो अभी आंसर अंदर ब्लैंक है, ऑलरेडी एक वेरिएबल बना हुआ है आंसर का. तो अगर आप वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछते हो, यूजर जो भी आंसर आपको देगा वो वहां पे जाके सेव हो जाएगा, वो डेटा वहां पे सेव हो जाएगा. ठीक है, क्लियर एवरीवन. अभी जो भी आंसर मतलब मैंने सपोज एग्जांपल लिया था नंबर 37 का, राइट, तो वो नंबर यहाँ पे आंसर में जाके सेव हो जाएगा, बिकॉज आंसर तो हर बार अलग अलग रहेगा. एनीबडी कैन एंटर एनी नंबर. ओके, सो व्हाटएवर नंबर यू हैव एंटर्ड दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द आंसर वेरिएबल. नाउ दैट डिवाइडेड बाय 2, सो वो 2 वी हैव टू राइट डाउन मैन्युअली. सी यहाँ पे आप 37 नहीं लिख सकते हो. कैन यू राइट 37 मैन्युअली? Not sure ना, every time user 37 नंबर ही थोड़ी चेक करेगा, not sure. So that's why we have to put answer variable over there. Variable का मतलब क्या होता है, different number, every time number will be changing because whatever number is entered by the user that we have to check. अभी मैंने divide by 2 किया, now I have to compare वो remainder is equals to 0 है या नहीं है. Okay, see I'm not putting this program anywhere over here because first we are making a logic. वो logic बनाने के बाद कहाँ पे रखना है, I'll teach you. Okay, अभी इसको हमको compare भी तो करना है, right, वो remainder 0 है या नहीं है. तो again compare करने के लिए we'll get the block inside the operator palette. Can you see the equal to वाला block यहाँ पे? Okay, equal to किसके साथ compare करना है, 0 के साथ, तो we will write down 0 over here. Clear? नाउ व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो भी आंसर मिल रहा है हमको, हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये पूरा ड्रैग करके इसके अंदर लेके जाना है. तो आप कैसे ड्रैग करके लेके जाओगे, व्हेन यू ड्रैग इट यूजिंग योर माउस पॉइंटर,
यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का हाईलाइट आ जाएगा, जैसे ही आप वो ब्लॉक को लेके जाओगे व्हाइट कलर का आउटलाइन आ जाएगा, छोड़ दो, ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? अगेन आई एम शोइंग यू. You drag this block and place it inside like this. Clear? अब ये मेरा लॉजिक बन गया. Now this block I cannot fit over here, right? Is it snapping between this? No, it's not possible. तो ये लॉजिक कहाँ पे आएगा? If else ब्लॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, नंबर इवन भी हो सकता है, नंबर ऑड भी हो सकता है. तो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है. इफ एल्स वाला ब्लॉक है, हम लोग पहले वो ब्लॉक ले लेंगे. अभी यहाँ पे आपको हेक्सागोन शेप दिख रहा है, तो जो भी लॉजिक कभी भी रहेगा वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारा हेक्सागोन शेप में ही रहेगा. सो यू जस्ट drag this logic and place it over here. Can you see the white color border is coming again? Yes, so you have to place your this logic inside that. Automatically your block will expand. Okay, आपका कोड अगर बड़ा है, zoom in zoom out आप कर सकते हो. यहाँ पे we have option of zoom in zoom out. Okay, clear everybody? Again, place wherever you want. Now again I'm repeating the logic. हम लोग यूजर को पूछ रहे हैं enter the number. What is the number? Then we are using this logic, and then based on this logic, whatever answer you get it, you have to write the program over here, whether it is odd number or even number. अभी if के अंदर क्या आएगा? If my answer is divided by 2, that means whatever number we have entered, if modulus 2 is equals to 0, that means वो अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो वो कौन सा नंबर है एवरीवन? इवन नंबर है. तो आई जस्ट हैव टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इट इज इवन नंबर. तो डिस्प्ले करने के लिए कुछ भी मैसेज अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, आई कैन यूज दिस लुक्स पैलेट में जाके से ब्लॉक. इट इज इजियर फॉर मी, राइट? तो हम लोग यहाँ पे जाके से ब्लॉक जो 2 सेकेंड वाला है ना, हम लोग वो वाला यूज करेंगे. वी विल बी यूजिंग दिस से ब्लॉक फॉर 2 सेकेंड. ओके, नाउ वी डोंट हैव टू से हेलो हाय. ओके, वी हैव टू जस्ट से even number for 2 seconds or maybe for 3 seconds. You can keep it whatever time you want. And for the else condition, अगर वो 0 नहीं है रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर will be 1. अगर रिमाइंडर 1 है तो वो कौन सा है? It is odd number. You can write it for 3 seconds. हो गया हमारा प्रोग्राम. इट इज ईजी. ओके, आपको ऐसे सुनने में लगता है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज व्हेन यू सिट एंड डू इट. एक एक स्टेप आपको सोच सोच के करना है कि ये लॉजिक है तो ये हो सकता है, अगर ये नहीं तो ये भी हो सकता है, राइट? सो प्रोग्रामिंग इज मेड लाइक दैट ओनली. The laptop which you are using, the mobile phone which you are using, everything in your house, whatever devices you are using, the washing machine, the air condition, smart TV, how they are made? They are made using programming only. Example, air condition, you set the temperature, you set के 24 हो गया तो you can set the fan speed also. So all this thing is a program. Okay, clear everybody? Same way यहाँ पे भी हम लोगों ने simple सा program किया है whether number is odd or even. अभी इसको check करेंगे. Okay, when this sprite is clicked, so can I get the odd and even? अगर मैं कहीं और click करूंगी, अगर green flag को click करूंगी, नहीं, I will not get the output. So I have to click on the block. See, if I click on the block, immediately I am getting the option of entering the number. So now I can enter any number, say 89. Can somebody say 89 कौन सा number है, odd or even? Can anyone say? You can just answer to your teacher, whoever is present over there. Okay, 89 is an odd number. So let's check. Yes, it is an odd number because 89 if you divide by 2, एक remainder बचेगा, number 1 will be the remainder. Okay, so that is the odd number because we have placed it in the else condition. अगर remainder 0 नहीं है तो जो भी होगा वो else में जाएगा. else मतलब odd number. Clear everyone till here? Any doubt so far? सबको समझा? Okay, I'll just quickly take a doubt session. If you have any doubt, you can just ask your teacher to, unmute. You can raise your hand. Anyone have any doubt? Yes, anybody, any doubt? You can raise your hand, ask your teacher to, unmute. Okay, no doubt? That's great. Okay.
प्लीज गो होम प्रैक्टिस. अगर आप कंप्यूटर लैब में हो कर सकते हो, टीचर्स यू कैन जस्ट गिव योर स्टूडेंट, यू नो, इफ यू कैन गिव स्टूडेंट कंप्यूटर टू डू इट along with me in the class, that is also a good option. We can do it that way also. Fine. Now, okay, let's back to the program. Fine. हो गया हमारा. अभी हम लोग करेंगे किलोग्राम टू ग्राम का प्रोग्राम. तो ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे है. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट स्प्राइट. अब ये खाली है ये वाला स्प्राइट का प्रोग्राम. इवेंट ब्लॉक में जाके वी हैव टू यूज द सेम इवेंट ब्लॉक व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड. So now what should happen when this sprite is clicked? या ये तो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे दो कंडीशन है ही नहीं. हमको सिर्फ जो भी नंबर यूजर ने दिया we have to convert into the gram. Okay. तो first we have to take the number from the user. So we'll use this ask वाला block. Ask, enter number in kilogram. See, यहाँ पे I am asking enter number in kilogram because we are converting kilogram to gram. Okay. Now, what I have to do, whatever number user have entered into the kilogram. Suppose I am saying that I have 2 kg. अभी मुझे उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो किलोग्राम इज अ बिगर नंबर. तो उसको बड़ा नंबर बनाने के लिए small number to bigger number, if you want to make it, kilogram is a bigger unit. Number is a small, now you want to make it to a smaller unit. Okay, तो उसको multiply करना पड़ता है. Okay. So now what is the relation between kilogram and gram? 1 kg is equals to 1000 gram. Okay. तो कैसे करेंगे देखो. अभी यूजर ने जो भी आंसर दिया है that answer I will have to multiply with 1000. ऑपरेटर्स में जाना है मल्टीप्लीकेशन के लिए. ये जो स्टार साइन है ना यहाँ पे, कैन यू सी एवरीबॉडी? दिस स्टार साइन सेज इट्स अ मल्टीप्लीकेशन. So now which two number I have to multiply? This answer, whatever kilogram user have entered, that multiply by 1000. So 1000 तो मैं खुद से लिख सकती हूँ because वो fix है. See, whatever things are fixed, you can type it manually. But जो भी चीज fix नहीं है, user can enter any kilogram, right? मुझे अगर 5 किलोग्राम चेक करना है, किसी को 2.75 किलोग्राम चेक करना है, तो सबका अलग अलग नंबर रहेगा. सो दिस इज नॉट फिक्स. सो देयर यू हैव टू यूज वेरिएबल. ये फिक्स है. नाउ दिस व्हाटएवर आंसर विल कम, दैट इज माय ग्राम. ओके. तो अभी उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे स्क्रीन पे? विद द हेल्प ऑफ से ब्लॉक. ओके. सो आई एम जस्ट सिंपली टेकिंग दिस ब्लॉक से. ये वाला आंसर वी डोंट हैव टू डिस्प्ले हेलो. सो ये व्हाटएवर आंसर मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लीकेशन के बाद हमको मिलेगा, that we have to display on the screen. Okay, just have a look at the screen first. I'm just clicking on this button. It is asking me enter number in kilogram. Now say I want to check 7.457 kilo. I have this many kilogram. I want to convert into the gram. Okay, so I clicked on enter. It is giving me number 7457. It is right. But do I know what unit it is? I should know ना. So उसके पीछे लिख के आना चाहिए ग्राम. Okay, so how will you do that thing? So here in the operator you have option called as a join. Can you see the join block is given? They have written join apple and banana. So if you do it, you know, like this, it is joining the two number. I mean, whatever thing you write it together, it's just joining it. So I want to join this calculation. उसके पीछे क्या लिखना है आपको? Unit लिखना है. So gram is my unit. After all the calculation, it is converting into the gram. So that unit should come behind, right? Number के पीछे वो unit लिख के आना चाहिए, right, everyone? So that unit we are writing along with it. So let's see how it is coming now. Now if I click on this, it is asking enter number into the kilogram. So say I enter 4.25 kilogram. Okay. Now, okay, it says 4250 gram now. Clear everyone? यहाँ पे स्पेस नहीं था. If you want to give a space, G के पहले you can just enter the space. It's a smart way to do it. Let's check space आ रहा है क्या. Now I am writing 2 kilogram. So it says 2000 gram. Clear everyone? कोई भी डाउट है किसी को? हम लोगों ने अभी तक even, odd and kilogram to gram किया है. These 3 buttons we will continue next class. Okay everybody? Any doubt anyone till now? सबका अलग अलग कन्वर्जन है. किलोग्राम टू ग्राम के लिए वी हैड टू मल्टीप्लाई विद 1000. देन ग्राम टू किलोग्राम के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय 1000. वैसे अलग अलग यूनिट होता है सबका.
इंचीज टू सेंटीमीटर का अलग रिलेशन है, सेंटीमीटर टू इंचेस का अलग है, वैसे सबका अलग अलग रिलेशन है. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट दैट कन्वर्जन एंड यू कैन प्रिपेयर द ब्लॉक एंड आप पीछे से ऐसे आराम से चेक कर सकते हो. ठीक है, हो गया, सबका क्लियर डाउट होगा तो यू कैन आस्क नेक्स्ट क्लास, यू कैन राइट डाउन द डाउट इफ यू वांट. घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो तो वेरी गुड, यू कैन गो होम एंड प्रैक्टिस इट. Okay, everyone. So we are done for the day. Have a nice week. See you next class, everyone. Bye.